अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्ड सेमेस्टर हमारा सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लाइफ स्टेज एडजस्टमेंट. As we previously learned about different life stages, which are infancy, childhood, adulthood, adolescence, and childhood is further divided into early childhood, middle childhood, and late childhood. And there is a stage which is called adolescence. Adolescence is a bridge between childhood and adulthood. And after adolescence, the stage adulthood it comes, and adulthood is further divided into early adulthood, middle adulthood, and late adulthood. Late adulthood is also called old age and aging. So now we will discuss about what are the hazards or adjustments, actually adjustments which are required during each span of life. As we learn about different developmental tasks of infancy and childhood. So when we talk about the adjustment, so adjustment is also needed according to the task of that specific stage. First stage is infancy, that is from birth to 2 years. सो अगर हम इन्फेंसी के देखें तो उसमें आप देखो कि एक इन्फेंट जो होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ही और शी इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द केयर टेकर. सो इफ़ ही इज़ प्रॉपरली look after and provided with all his or her basic necessities, so he will be comfortable in life. Changes may be in schedule and bedtime routines, and sometimes strangers chaos, which is called in stranger anxiety. These things may need adjustment. And after infancy the stage come is childhood. चाइल्डहुड में अगर देखें तो 3 to 12 ईयर्स इसे कवर करता है. 3 to 12 इसलिए है क्योंकि इसमें उन्होंने जो इन्फेंसी के बाद टॉडलरहुड है एंड प्री स्कूलर एज है ना, प्री स्कूलर एज आ जाती है हमारी, और उसके बाद आ जाती है स्कूल एज. प्री स्कूलर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ 3 to 6 पे जो है वो बेस करती है, एंड स्कूल एज जो है वो 6 to 12 ईयर्स में हमारी आती है बिफोर एडोलेसेंस. तो ये भी इंक्लूड करती हैं चाइल्डहुड में ही. इसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड दोनों आ जाते हैं. इसमें अगर हम देखें तो 3 ईयर्स से जब स्टार्ट हो रही है तो जो चाइल्ड है उसमें आप देखोगे कि इट कैन कॉज सेपरेशन एनजाइटी बिकॉज द चाइल्ड स्टार्ट गोइंग स्कूल. स्कूल प्ले ग्रुप या नर्सरी या डे केयर सेंटर, तो इट कैन create separation anxiety from the parents or from caretaker. Social skills and peer relationships are also depending during this stage. So these social skills which need to be developed for the child, and peer relationship, it may also sometimes cause adjustment problem, and they need adjustment problem during this phase. Otherwise the child will not adjust with his or her school routine, and that can create problem for them. After childhood the stage come adolescence. Adolescence, you can say 12 to 19, and sometimes we called it teenage, and it is included 13 to 19 years of age. अब इसमें अगर हम देखें तो the main issue is peer pressure, and sometimes romantic relationship with the opposite sex is also called also create problems for this stage. The main concern for the adolescent is to gain independence and identity development. Identity development के reference अगर हम देखें तो we discussed about Erikson theory. Stage number 5 है, which is titled as confusion, role आइडेंटिफिकेशन एंड रोल कन्फ्यूजन. या तो बच्चा जो है उसकी डोलेसेंट की जो है विच इज़ नो मोर चाइल्ड एट दिस स्टेज, या तो वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है या फिर रोल कन्फ्यूजन में जा सकता है. तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं हर स्टेज के, जो कि हमने डेवलपमेंटल टास्क में भी पढ़े थे. यहाँ पे इनको डिस्कस जो किया जा रहा है वो इस एस्पेक्ट से किया जा रहा है कि ये जितने भी हम टास्क हैं ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है वो हो सकती है एडजस्टमेंट की. अगर एडोलेसेंट टाइमली अपनी आइडेंटिटी डिफ़ाइन नहीं करता, इंडिपेंडेंस उसे नहीं मिलती, या पीयर प्रेशर को या अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन नहीं करता, तो ये सब वो चीज़ें या टास्क हैं विच नीड एडजस्टमेंट एट द सेम स्टेज.
अगर उस स्टेज में नहीं होती तो फिर अगली जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके टास्क को अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दीज में ब्रिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन एंड बिहेवियर रिस्क। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट यंग एडल्ट्स, जिसमें 20 to 29 ईयर्स आ जाता है। अब अगर इसका हम देखें तो इसमें क्या क्या आएगा, बिगनिंग कॉलेज, टेकिंग अप job, starting a family and buying a house, and some of the significance even during this stage, and may be some more included, and may these demand strong efforts from the adults, young adults, and obviously the young adult need to move out from his comfort zone. ये नहीं हो सकता कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, क्योंकि इस स्टेज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। यू हैव टू स्टार्ट अ जॉब, यू हैव टू स्टार्ट अ कैरियर, यू हैव टू स्टार्ट योर फैमिली। तो अगर आप इसमें एडल्टहुड के स्टेजेस के जो टास्क हैं उसको अचीव नहीं कर पाते तो एक वो आप कह लें कि एक गैप आ जाता है लाइफ के अंदर। आपको उसके जितने भी टास्क हैं उसमें आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, अगर कॉलेज में आप लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं करते तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि यू बिकम बैचलर और यू गॉट डिग्री एंड यू स्टार्ट कैरियर। वहीं पे आप कह लो आपकी लाइफ जो है वो उसमें हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप स्टडीज़ कंप्लीट करके जॉब में जाते हैं तो उसमें भी आपको हर तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जॉब के आप कह लो आपकी एडजस्टमेंट, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड यू नीड टू बैलेंस बिटवीन ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये जितने भी हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं दे डिमांड एडजस्टमेंट फ्रॉम अस। तो यही इनके जो टास्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, यही इनके एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी इसी स्टेज की हैं। एडल्ट्स में देखें तो 30 to 39 ईयर्स है, इसमें मैनेजिंग फैमिली एंड कैरियर ग्रोथ आ जाती है। ये वो स्टेज है कि जिसमें ऑलरेडी कैरियर में इंसान इन होता है और उसी में आगे प्रोग्रेस करना जो है वो ज़रूरी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं एंड दीज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में समटाइम कॉज स्ट्रेस एज वेल। सो वी नीड टू मैनेज ऑल दीज developmental task and achieve the task timely on the stage. मिडिल चाइल्डहुड में देखें तो 40 to 60 आ जाती है और 60 आप कह लें इसमें इंक्लूड भी होती है और आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो ओल्ड एज आ जाती है। तो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग जो है वो इसी में स्टार्ट होता है। अगर हम विमेन में देखें तो मीनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं एंड चिल्ड्रन लिविंग द होम, ग्रैंड चिल्ड्रन अराइविंग, कैरियर आपका पीक पे जाकर रिटायरमेंट की स्टेज भी इसमें ही आ जाती है। एंड ऑल दीज थिंग्स में टेक अ टोल ऑन अ पर्सनस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि इसमें जो स्टेज में पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की एज आ जाती है तो उनको अपनी वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करनी होती हैं। तो ये आप देखो कि एक स्टेज वैसी नहीं होती जिसे हम कहें कि जो मेंटल या फिज़िकल आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें भी डिक्लाइन आ रहा होता है और उसके साथ साथ जो है वो ह्यूमन बींग्स को ज़रूरी होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें और एक नेक्स्ट जनरेशन को इंडिपेंडेंट भी बनाएं। इसके बाद आ जाती है इंडिपेंडेंट ओल्ड एज। इंडिपेंडेंट इस तरह से है कि बहुत से लोग एज ऑफ 60 और आफ्टर 60 जो है वो इंडिपेंडेंट एज गुजार सकते हैं इफ़ दे आर फिज़िकली एंड मेंटली हेल्दी। ये रिटायरमेंट की एज भी होती है खुदा ना खास्ता। इसमें जो है वो डेथ ऑफ स्पाउस भी आ सकती है। तो ये बहुत सी ऐसी इसके साइंस एंड सिम्टम्स या टास्क आप कह लें इस एज के हैं जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं या जिनके साथ ज़रूरी है एडजस्टमेंट को बिल्ड करना। इसके बाद आ जाती है डिपेंडेंट ओल्ड एज। ये भी ऑप्शनल स्टेज है। ऑप्शनल का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो डिपेंडेंट ओल्ड एज तक भी जाए। अब इसमें क्या आ जाएगा, फीलिंग ऑफ बीइंग डिपेंडेंट एंड रिक्वायरिंग असिस्टेंस में डिस्टर्ब अ पर्सन एंड मे रिड्यूस देयर एबिलिटी टू इन्जॉय लाइफ, क्योंकि वो उस तरह से स्टेज के ऊपर जिसमें टोटली डिपेंडेंट लाइफ हो तो उसमें उनको जब एक असिस्टेंस चाहिए है थ्रू आउट डे और फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ, तो इट कैन कॉज स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर द ओल्डर पीपल। तो ये हमारी स्टेजेस के टास्क के साथ जो उनकी कुछ एडजस्टमेंट की थी कि किस किस
स्टेज के ऊपर एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है, तो वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद एंड ऑफ लाइफ है, दिस इज़ अ टाइम व्हेन अ पर्सन रियलाइज दैट ही एंड शी हैज़ कम क्लोज टू द एंड एंड मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड लव। क्योंकि इस स्टेज पे जिस तरह हम कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं, तो उसी तरह से उन्हें केयर और लव की ज़रूरत होती है। So in the concluded paragraph, we will see that life is a journey that has a milestone at every point, and these milestone that we already discussed in infancy and childhood, adolescence and adulthood, when it is a time for a change, and we must be prepared for the change. Sometimes these milestones come into our life fast, and sometimes these are slow, and sometimes we are even not realize that we are changing with the time. So however, we must be prepared to face these transition and life stages. Adjustment become very easy if we transit with the changes smoothly. So we open up to the changes in an effective way. तो ये हमारा जो टॉपिक था लाइफ स्टेजेस एडजस्टमेंट का। अगर होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।